So today we will see the style of C. Okay. So here you can see that uh, from the last previous classes. Please put your mic off. Hello. Okay. So to the last previous classes, we have seen that header files and all. We have talked about that. That what is header file and what are the basic things about the header files. Why do we need that? Okay. So from today we will start the main C programming, the style of C. Okay. So very first thing which you have to know about that, the structure of the programming language. Okay. So while we are talking about the C language, there you have to follow some style. Okay. What are the style? The very first thing is that which you need to include is the header file. What is that header file? The header file name is stdio.h. There are many others header file like maths.h, like assert.h, like conio.h. Okay. So there are many different types of header files, but the thing which you have to enter the very first in your programming language is stdio.h. Why do we use that stdio.h? We use stdio.h because it contains the input output functions. Okay, standard input output functions. This header file includes some standard input output functions. Those functions are mainly printf and scanf. What is printf? Printf is used to print something in your console screen. Okay, अगर आपको कुछ भी अपने कंसोल स्क्रीन में प्रिंट करना है तो आपको printf फंक्शन का यूज करना है, और इस फंक्शन को यूज करने के लिए आप कौन सा हेडर फाइल का यूज करेंगे? stdio.h. what is stdio.h? stdio is standard input and output dot h means header file. Okay, dot h जो आपका फाइल होगा उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट सी. जो हेडर फाइल होता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट एच. सो दिस इज द वेरी फर्स्ट लाइन विच यू हैव टू राइट व्हेन यू विल स्टार्ट द राइटिंग सी प्रोग्रामिंग. Okay. 1 minute. So once again I am repeating, what you have to do is you have to write the very first header file line. Okay, that is has include stdio.h. With the writing of this file you are including all those functions which are inside this stdio.h. Okay, जो भी चीज आपके stdio.h फाइल के अंदर है वो सारे फंक्शंस क्या हो जाएंगे? इस प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाएंगे. So we use hash include stdio.h. So this is the very first line. Next, after that, what you do is you just declare all those variables which you need. Okay, what is variables? Why do we need variables? I will come later on, but the thing is that you have to maintain the sequence. So in the sequence, the second thing which you need to write is you have to write the variable names like set z, h, p, y. These are all what? Variable names. So you have to write those variables name. Next is the int main function. Okay, the what is the main function? Main function is the main body. Inside that everything which you have to write. Okay, उस main body के अंदर ही आपको सब कुछ लिखना है. main body के अलग में अगर कोई भी आप functions बनाते हो, कोई और भी अगर functions declare करते हो, so those are words user defined functions. ठीक है, उसके बारे में हम लोग functions chapter में पढ़ेंगे. So before that, the first thing which you need to include that is the main function. Okay, इसमें क्या होगा? main function होगा. अगर आप 16 बिट यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको void देखने को मिलेगा, और अगर आप recent compilers यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको int main देखने को मिलेगा. ओके, द int main. नेक्स्ट, इनसाइड दैट int main यहाँ पे void लिखा हुआ है. void का मतलब है ये कोई भी पैरामीटर्स नहीं लेगा. ओके, व्हाट आर द पैरामीटर्स? वी विल कम वेरी डिटेल्स इन द चैप्टर कॉल्ड फंक्शंस. ठीक है, फंक्शंस चैप्टर में हम ये सब चीजों को बहुत अच्छे से देखेंगे. फिलहाल के लिए हम देख रहे हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, सो इन द int main you have to write void. Okay, this is not included कि आपको हर बार लिखना ही पड़ेगा. It is not necessary. Okay, so the very first thing is that int main. Inside that int main you have to first, what you have to do is to you have to open this braces. Okay, and you have to write inside that whatever things you are write inside that, you call it as main body program. Okay, आप इसको क्या बोलते हो? main body program बोलते हो. Okay, then after, while you close this, you write return 0. what is return 0? I will come इन द चैप्टर कॉल्ड पॉइंटर्स. ठीक है, जब पॉइंटर्स पढ़ेंगे तब समझेंगे कि ये रिटर्न जीरो का क्या मतलब यूज है. नहीं तो सब लोग बोल देते हैं कि ये रिटर्न जीरो का कुछ खास यूज नहीं है, और आप कहीं किसी प्रोग्राम में देखोगे कि रिटर्न जीरो नहीं भी लिखा हुआ रहता है, बट स्टिल रिटर्न जीरो हैज इट्स मीनिंग. और ये इसका क्या मीनिंग है वी विल अंडरस्टैंड इन द चैप्टर कॉल्ड
pointers. Okay, so now there is a two statement, that is one is the printf, that is hello, and next printf we are saying that welcome to the third year CE. Okay, whatever the statement you want to write. Now every statement is terminated inside this main body with a semicolon. We have already discussed about that कि semicolon से एक statement क्या होता है, end होता है. So these are the things. Now this is what us comment. Whenever you write something with slash and asterisk, this comes a what, this comes as comment. Comment का क्या मतलब होता है, जो प्रोग्रामर है उसके समझने के लिए है, ठीक है, यूजर के समझने के लिए नहीं है. जो भी चीज यूजर के समझने के लिए होगा वो कंसोल स्क्रीन में रहेगा, और ये चीज कहाँ पे रहेगा, ये वो प्रोग्राम फाइल के अंदर रहेगा. So this is all about. Next, why do we need these braces? These braces, which braces I am talking about, ये जो braces main function के बाद लिखा हुआ है, ये braces का क्यों जरूरत है? So these are my things. जो आपका main body है वो बोलता है these are my things, this tomato, potato and these are all my things. मतलब इसके अंदर जो भी printf, scanf जो भी आप लिखोगे, these are what, these are my things. और इसके बाहर कुछ भी अगर लिखते हो, so those are not my things. मतलब ये कौन बोल रहा है? The main body is saying, because those are not inside this braces. I think this is clear. Now, basic structure of C program. So very first thing which you need to write is stdio.h. stdio.h का मतलब क्या हुआ? Standard input output. Then hash include conio.h. ये conio.h आप लिखते हो जब आप turbo C++ यूज करते हो, ठीक है. लेकिन जब आप हमारे साथ dev C++ यूज करोगे तो आपको windows.h लिखना पड़ेगा. windows.h में आप conio functions को यूज कर पाएंगे, और उसमें ये conio function का बेसिकली यूज होता है console input output, ठीक है. console input output. console input output का मेन काम होता है कि आपके किसी फंक्शन को पॉज करके रखना, तो जो या फिर किसी के साथ कैरेक्टर्स लेना. सो फॉर दैट यू नीड दिस conio.h हेडर फाइल. तो इसका काम हम बाद में देखेंगे. नेक्स्ट इज void main. ओके, इन दिस void main, ये भी अगेन आपका 16 बिट में यूज नहीं हो, 16 बिट में यूज होता है जो कि टर्बो सी प्लस प्लस था. अभी आपका int main देखने को मिलेगा, ठीक है. बुक्स ने अभी भी अपने आप को मतलब अपडेट नहीं किया है. जिस दिन बुक अपडेट हो जाएगा उस दिन आपको यहाँ पर भी int main देखने को मिल जाएगा. Next, there is a braces, and inside that braces you have to write your code. Okay, so what are header files? Already taught you about what are header files. Once again we are repeating. Header files are the specific files that include some section, okay, like your functions, like some predefined functions जैसे कि scanf, printf, sine, cosine. These are all things जो कि आपके already written है किसी एक फाइल के अंदर. वो फाइल कुछ भी हो सकता है. Okay, so those files are your header files जिसका extension नाम क्या होगा, .h. Okay, like your maths.h, like your stdio.h. so these are many header files. लेकिन जो आप c source लिखोगे उस फाइल का extension का नाम होगा .c के साथ. Okay, now see, here is a function जो क्या काम करने वाला है, दो functions, दो numbers का addition करने वाला है. One is 5, another one is 2. Okay, so this is one variable जो क्या पकड़ के रखा हुआ है, 2 पकड़ के रखा हुआ है. Okay, it has taken 2, and this function is this variable. Okay, they both are variables, and this variable is taken the number 5, this variable is taken the number 2, and they togetherly contribute 2 and 5. And this sum function, this add function, what it will do, it will do addition, और ये addition का result आप किसी C variable में देना चाहते हो. Okay, so what to do with 2 and 5? Oh, I have to do addition. Okay, so this kind of definition for printf is stored in stdio.h. तो stdio.h के अंदर जो ये printf है उसको क्या करना है, उसको इस चीज को print करना है. Before that we have seen that there is a variable 1 जो कि एक वैल्यू पकड़ के रखेगा, there is a variable 2 जो कि दूसरा वैल्यू पकड़ के रखेगा, and there will be another variable 3 जो इनके रिजल्ट को क्या करेगा, स्टोर करेगा. सो यू नीड दोज वेरिएबल्स, और ये वेरिएबल्स के बारे में क्या होता है, वी विल कम टू दैट पॉइंट वेरी सून. ओके, सो नाउ व्हाट इज मेन फंक्शन? द मेन फंक्शन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ एनी प्रोग्राम. मींस जब भी आप किसी प्रोग्राम में घुसते हो, तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट थिंग इज द stdio.h, मतलब ये लिखना ही है कंपलसरी फॉर सी प्रोग्रामिंग, ठीक है. stdio.h जो कि एक हेडर फाइल है. उसके बाद जो चीज लिखना है वो है आपका मेन फंक्शन. मेन फंक्शन से ही सब प्रोग्राम क्या होता है, रीडिंग स्टार्ट होता है. Okay, so this is what the entry point of a program. While a file is executed, the start point is the main function. जब भी आपका प्रोग्रामिंग स्टार्ट होता है, जो पहला चीज देखता है कंपाइलर वो है आपका मेन प्रोग्राम. Okay, so main function. Okay, so the main function is the first one to be executed. Now from the main function flows goes as per the programmer's choice. मतलब उस प्रोग्रामर्स के चॉइस के हिसाब से वन बाई वन क्या होता है, प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शंस फॉलो अप होता है. सो देयर मे बी और मे नॉट बी अदर फंक्शंस. मतलब जब आप इनिशियल प्रोग्रामिंग करना सीखोगे तब आप देखोगे कि वहां पे कोई और फंक्शंस नहीं भी हो सकते, बट स्टिल द मेन फंक्शन इज द फंक्शन जो हमेशा हर एक प्रोग्राम में कंपलसरी है. इज दैट क्लियर?
up to here? Okay, so we have seen that there are no other functions, but what happens over here, there is a main function. ठीक है, मतलब कोई भी फंक्शन हो ना हो, आपको एक मेन फंक्शन अपने प्रोग्राम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा. Okay, so now see, running a C program. Okay, running a C program, you have type a program. First of all, what you have to do, these are the procedures which you have to follow in every program. सबसे पहले आपको प्रोग्राम लिखना है, फिर क्या करना है, you have to save it, then you have to compile the program. This will generate an .exe file, that is the executable file, जो कि आपको हर जगह देखने को मिलेगा. ओके, सो जब भी आप प्रोग्राम लिखोगे उसके लिखने के साथ साथ दो फाइल जनरेट होता है. वन इज योर फाइल जिसमें आपने प्रोग्राम लिखा है, एंड वन इज द एग्जीक्यूटेबल फाइल जो कि एग्जीक्यूट करने के बाद जो फाइल बना है. The run the program, actually the executed or created out of the compilation will run, and not the .c file. .c फाइल जो है वो बस एक फाइल है. ओके, वो .c फाइल का क्या बनता है, .exe फाइल बनता है, जो क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है. उस एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर आपके द्वारा लिखा हुआ जो भी प्रोग्राम है वो क्या होने वाला है, उसमें रन होने वाला है. सो इन डिफरेंट कंपाइलर वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस फॉर कंपाइलिंग एंड रनिंग. ठीक है, जैसे कि ये एग्जीक्यूटेबल फाइल आपको अलग से एक फाइल देखने को मिलेगा व्हेन यू राइट प्रोग्राम इन डेव C++. लेकिन जब आप विजुअल स्टूडियोज में देखोगे तो टर्मिनल में ही आपको क्या मिल जाएगा, उसका एग्जीक्यूटेबल फाइल मिल जाएगा. ओके, सो देयर आर डिफरेंट कंपाइलर्स एंड द डिफरेंट टेक्स्ट एडिटर्स, जिसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोग्राम्स को एडिट कर सकते हो और लिख सकते हो. सो लाइकवाइज द थिंग इज दैट. नाउ कम टू द मेन पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग. यहाँ से हमारा प्रोग्रामिंग एक्चुअली में स्टार्ट होता है. अभी तक जो भी था वो था द ग्लिम्सेस, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं. ओके, so now the C language tokens. The very first thing which you understand about this is the tokens. Okay, ये tokens क्या चीज है? tokens का मतलब होता है keywords, constants, operators, strings, identifiers, symbols. इन सारे ग्रुप्स का जो एक कॉम्बिनेशन है इसको बोलते हैं tokens. अगेन आई एम रिपीटिंग, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स जिसको आप फर्दर तोड़ नहीं सकते हो. ठीक है, जैसे कि मान लो एक बिल्डिंग ब्लॉक है. ओके, सो बिल्डिंग ब्लॉक का सबसे यूनिट सेल क्या होगा, एक छोटा सा ब्रिक है ना. सो ब्रिक इज द लास्ट यूनिट सेल. उस ब्रिक को आप और फर्दर क्या नहीं कर सकते हो, डिवाइड नहीं कर सकते हो. लाइक इन योर केमिस्ट्री, जो कि आप बोलते हो कि एक एटम है, उस एटम को तोड़ोगे तो उसके अंदर से तीन चीज मिलेगा, लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. उस इलेक्ट्रॉन को अगर आप फर्दर तोड़ोगे तो उसके अंदर से कुछ नहीं मिलने वाला. सो इलेक्ट्रॉन इज द लास्ट सेल, है ना. सो सिमिलरली यहाँ पे जो सी के टोकन है, ये क्या है, वो लास्ट सेल है. उसके आगे आप उसको क्या नहीं कर सकते हो, उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, फर्दर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो. सो द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट in C program are known as tokens. Okay, so what are those things, like a keywords. Okay, जैसे कि float, integer, while loop, for loop, do while loop, these are words you. हाँ, hello. दादा तुम्ही स्क्रीन शेअर करतो तुम्ही? The screen is not visible. ना भावला तुम्ही स्क्रीन शेअर करतो ना? Okay, I'm very much sorry about that. Okay. भावला यार तुम्ही स्क्रीन शेअर करतो ना? So I'm just repeating again once again. ठीक है, देखो यहाँ पे stdio.h है. These are, next thing is the integer z, next is int main, then after that you are having this program. So in this main program you are repeating, you are just writing your code, okay, inside this braces. And thank you for informing me. और ये क्या है, एक ब्रेसेस है, ब्रेसेस के अंदर आप जो भी चीज़ लिखोगे उसी को ये मानेगा, अदरवाइज ब्रेसेस के बाहर जो भी होगा उसको वो क्या नहीं करेगा, इंक्लूड नहीं करेगा. ओके, सो ये stdio.h conio.h से स्टार्ट हो रहा है, और इंट मेन के अंदर जो भी है इसके अंदर लिखा हुआ रहेगा. इंट मेन जो है ये अभी के प्रोग्राम्स में लिखा रहेगा, ये पुराना बुक से लिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे वॉइड मेन लिखा हुआ है. वॉइड मेन अभी हम लोग नहीं यूज करते. नेक्स्ट, हेडर फाइल ऑलरेडी टॉट की. हेडर फाइल का मतलब क्या होता है, कोई भी एक प्रोग्राम जो कि आप यूज करना चाहते हो और कोई प्री डिफाइंड प्रोग्राम है उसको आप .h फाइल से अगर सेव कर देते हो तो वो हेडर फाइल हो जाता है किसी और प्रोग्राम के लिए. ठीक है, बट आपका जो करंट प्रोग्राम होगा उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .c होगा. Next, again, this is variable 1, this is variable 2. ये variable 1 is giving the value 2, this variable 1 is giving the value 5. और इनके जो सम आएगा उसका सम यहाँ से फ्लो आउट होकर के आ रहा है, जो किस में आ रहा है, यहाँ पे वेरिएबल नंबर सी के अंदर आ रहा है. ये जो भी चीज हो रहा है इसको डिफिनेशन के थ्रू हम बोलेंगे प्रिंट एफ. प्रिंट एफ के अंदर हम ये चीज को अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो ये प्रिंट एफ फंक्शन क्या करेगा, हमको अलाउ करेगा इस 7 को प्रिंट करने के लिए, वेयर इन द कंसोल स्क्रीन. ओके, सो मेन फंक्शन इज द फंक्शन जहां से एंट्री पॉइंट स्टार्ट होता है किसी भी प्रोग्राम का. मेन प्रोग्राम इज कंपलसरी फॉर एनी प्रोग्राम. कहीं आप कोई और फंक्शन लिखो ना लिखो, बट आपका मेन फंक्शन जो है वो रहना ही चाहिए एक प्रोग्राम के अंदर. ठीक है, सी प्रोग्राम के अंदर. रनिंग ऑफ अ सी प्रोग्राम, आपको प्रोग्राम लिखना है, सेव करना है, एग्जीक्यूट करना है,
और फिर आपका जो फाइल बनेगा उसका दो फाइल होगा, एक होगा डॉट सी, एक होगा डॉट ई एक्स। जो डॉट ई एक्स फाइल होगा वही होगा आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल। ओके, नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द टोकन्स, जो कि मैं अभी समझा रहा था। टोकन्स का मतलब है कि वो लास्ट सेल जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लाइक द कीवर्ड्स, कांस्टेंट, ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग्स, आइडेंटिफायर्स एंड स्पेशल सिंबल्स। लाइक कीवर्ड्स में क्या है, फ्लोट, इंटीजर, वाइल, ये सब क्या होता है, ये सब आपका डेटा टाइप्स है। कुछ आपके कीवर्ड क्या बोलते हैं, वाइल लूप्स के रिकॉग्नाइजेबल चीजें हैं, वाइल, डू वाइल। सो इनके बेसिक चीजों को क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड्स क्या है, रिजर्व वर्ड्स है। किसके रिजर्व वर्ड्स है, सी के रिजर्व वर्ड्स है, ठीक है, जो सी समझता है। सी लैंग्वेज जिस वर्ड्स को समझता है, दोज आर इट्स कीवर्ड्स। नेक्स्ट, आइडेंटिफायर्स। व्हाट इज आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स का मतलब होता है वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स या फिर क्या बोलते हो इसको, कंटेनर्स। वेरिएबल्स, कंटेनर्स जिससे आइडेंटिफाई होता है, क्या आइडेंटिफाई होता है, किसी एक पर्टिकुलर का वैल्यू आइडेंटिफाई होता है, ठीक है। दोज आर कॉल्ड एज आइडेंटिफायर्स। लाइकवाइज, जैसे कि यहाँ पर इस प्रोग्राम, इस पूरे चैनल में देखिए, ये जो वेरिएबल है इसका वैल्यू 2 है, तो ये पर्टिकुलर व्यक्ति जो भी है, दिस पर्सन इज व्हाट, दिस पर्सन इज योर आइडेंटिफायर। दिस गर्ल इज अगेन आइडेंटिफायर एंड दिस कार्टून इज अगेन आइडेंटिफायर। लाइकवाइज जब हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा अमाउंट, देन वेरिएबल का कोई भी नाम हो सकता है, लाइक जेड, पी, क्यू, आर, जो अकॉर्डिंगली आपका जो भी नाम देना है, एम्प्लॉय वेम्प्लॉय, जो भी नाम देना है आपको अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, तो वो सारे क्या होंगे, आपके आइडेंटिफायर्स होंगे, इफ दिस आर द ऑल वेरिएबल्स, अगर वो वेरिएबल्स हुए। नेक्स्ट इज द कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स का मतलब हुआ कि जो पर्टिकुलर कांस्टेंट है, लाइक 25.6, 100, 3.14, पाई का एक पर्टिकुलर कांस्टेंट होता है ना, पाई, दैट इज 3.14। जी का एक पर्टिकुलर कांस्टेंट होता है, दैट इज 9.8। सो दोज आर योर कांस्टेंट्स। देन स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स का क्या मतलब होता है, किसी पर्टिकुलर का नेम। ओके, नेम इज व्हाट, प्रज्वल, PRAJJAL, ग्रुप ऑफ दोज पर्टिकुलर कैरेक्टर्स, ठीक है। उन पर्टिकुलर कैरेक्टर्स का अगर आपने एक कॉम्बिनेशन बनाया और उस कॉम्बिनेशन का एक कुछ यूजुअल मीनिंग निकलता है, ओके, you have formed a combination of those particular words, and those particular words are giving you the some usual meanings, and those meaningful sentence is called what, string। Okay, those meaningful sentence are called as string, ठीक है। जैसे स्मिथ हो गया, जैसे ईयर हो गया, जैसे 2000, TWOTHOISAND वट एवर, सो 2000 हो गया। लाइक दिस स्पेशल सिंबल्स SPECILSOMBAYLS, सो ये स्पेशल सिंबल्स कंप्लीट जो यहाँ पे कैरेक्टर लिखा हुआ है, ये भी हो सकता है प्रोग्राम, ये भी कंप्लीट एक स्ट्रिंग हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्पेशल सिंबल। अब इसके साथ कंपेयर मत कर देना, ये स्पेशल सिंबल का मतलब मैंने बताया कि ये किसको रीड कैसे करते हैं, ओके। नेक्स्ट इज स्पेशल सिंबल्स, जैसे कि आपको देखने को मिला था कॉमा, देन आपको क्या देखने को मिला था, सेमीकलन। सो कॉमा, सेमीकलन, फिर एक ब्रेसेस देखने को मिला था, दोज आर व्हाट, दोज आर योर स्पेशल सिंबल्स। नेक्स्ट इज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स मींस द प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ओके, to the power, the power operators, so those are what your operators, like modulo operator। modulo operator क्या होता है, we will come to that। so operators means those which allows you to operate between the two operands, ठीक है। दो operands के बीच में अगर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, so for that you need a operator। so C programs are written using these tokens and general syntax। जनरल सिंटैक्स और ये 6 क्या है, टोकन्स, इनके साथ ही आप क्या करोगे, पूरा का पूरा सी लैंग्वेज लिखोगे। इतना तो समझ में आया। हेलो, हाँ हाँ, ओके। So C is a case sensitive. Then the first thing is that which you have to again keep look on your eye. Okay, that is the case sensitive. What is case sensitive? Case means there are two types of cases. Okay, the first one is called as lower case. First one is called what, lower case, लोअर केस, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड व्हाट, अपर केस। एक आपका अपर केस होगा और दूसरा क्या होगा, आपका लोअर केस होगा। लोअर केस में हमने छोट मतलब अपने बचपन से पढ़ा है, दिस आर व्हाट, ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ओके। सो दीज आर व्हाट योर लोअर केस। देन अपर केस आर व्हाट, अपर केस आर कैपिटल ए, capital B, capital C, okay, these are what your upper case। now if you want to write a name, name means NAME, okay, NAME। now NAME is a name, okay, NAME is a name। now if you write capital N, capital A, capital M and capital E, these two are actually different for C, ठीक है। for a C language this thing and this thing is same, this thing and this thing are not same, this thing and this thing are different, okay। similarly N, A, small m and small e, again this thing is different, ठीक, okay। so this is a very case sensitive language। कौन सा लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, एक बहुत ही ज्यादा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें केसेस किस तरह से है कि इफ यू राइट समथिंग विद द नेम with the first capital letter,
एंड फॉलोड बाय अ स्मॉल लेटर्स, तो इसको ये एज अ वन लेटर ट्रीट करेगा, ठीक है, एज अ वन स्ट्रिंग ट्रीट करेगा, एज अ वन स्ट्रिंग या वन लेटर जो भी आप बोलना चाहो फिलहाल के लिए, तो वन स्ट्रिंग या वन लेटर ट्रीट करने वाला है और इसको ये डिफरेंट ट्रीट करने वाला है। ओके, भले ही वो आपके लिए दोनों का मतलब सेम हो, ठीक है, भले ही आपके लिए उस दोनों का मतलब सेम हो, लेकिन इसके लिए ये दोनों का मतलब क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है, समझ में आया? Okay, so C is a case sensitive. All keywords and standard library functions are lower case. Initially वो सारे क्या होते हैं, लोअर केस में होते हैं. स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन का क्या मतलब होता है, जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर बाद आप देखोगे पावर फंक्शन, POW, पावर फंक्शन, ये पावर फंक्शन आपको लोअर केस में लिखना है. नेक्स्ट साइन फंक्शन, SIN, इसको भी आपको लोअर केस में लिखना है. नेक्स्ट यू विल सी द कॉस फंक्शन, ये भी आप लोअर केस में लिखोगे, ठीक है, लोअर फंक्शंस में. ये सब मैथमेटिकल फंक्शंस है. सिमिलरली गेट कैर, GETCAR, ये सब आप सीखेंगे थोड़ी देर बाद से. तो ये सब किस फॉर्मेट में है, स्मॉल लेटर फॉर्मेट में है, कोई भी कैपिटल लेटर फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है. गेट कैर, पावर, साइन, कॉस, ये सब किस फॉर्मेट में होगा, स्मॉल लेटर फॉर्मेट में होगा. So now next thing is that each block starts with this कर्ली ब्रेसेस एंड एंड्स विद अ कर्ली ब्रेसेस, ठीक है. मतलब ईच ब्लॉक का क्या मतलब होता है, कोई भी अगर आप इस पर्टिकुलर में लिखना चाहते हो, सो दिस इज व्हाट अ ब्लॉक. दिस ब्लॉक विल स्टार्ट विद दिस ओपनिंग ब्रेसेस एंड एंड विद एन अगेन अ एंडिंग क्लोजिंग ब्रेसेस, ठीक है. जैसे कि मेन बॉडी, MAIN, जैसे कि एक मेन बॉडी में हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, मेन बॉडी में स्टार्ट किए और यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ. सिमिलरली आप देखोगे जब आप फॉर लूप लिखोगे, तो फॉर लूप से कुछ भी अगर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं अभी इसमें जा नहीं रहा हूँ क्या लिखा हुआ रहेगा इसमें, बट इट विल अगेन स्टार्ट विद अ ब्रेसेस एंड एंड विद अगेन अ ब्रेसेस. सिमिलरली विद इफ कंडीशन जब आप देखोगे, ठीक है, तो इफ कंडीशंस, ये सब भी एक कंडीशन होगा यहाँ पे, वो सब उसको रहने दो फिलहाल के लिए. बस ये देखो कि ये ब्लॉक से स्टार्ट होगा और एक ब्लॉक से क्या होगा, एंड अप होने वाला है. ओके, सो मतलब एवरी टाइम इट विल स्टार्ट विद अ ब्लॉक एंड एंड विद अ क्लोजिंग ब्लॉक, ठीक है. एक ओपनिंग ब्लॉक होगा और एक क्लोजिंग ब्लॉक होगा. सिमिलरली फॉर वाइल, डू वाइल, एवरीथिंग, ठीक है, सब कुछ के लिए आपको ऐसा ही चीज देखने को मिलेगा. फॉर एवरीथिंग, वाइल, डू वाइल एक ब्लॉक से स्टार्ट होगा, इस ब्लॉक के अंदर इसका एग्जिस्टेंस रहेगा और इस तरह से आप इसको क्या कर दोगे, बंद कर दोगे. ओके, सो ये वही चीज लिखा हुआ है कि ईच ब्लॉक इज स्टार्टिंग विद द ब्रेसेस एंड एंड विद द क्लोजिंग ब्रेस. ओके, सो ऑल सी स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम, कैन बिगिन एंड एंड इन वन लाइन एंड एनी कॉलम. ओके, मतलब ऐसा भी आप कर सकते हो कि किसी को अगर मन करे कि पूरा का पूरा कोड वन लाइन में लिखने का, तो वो पूरा का पूरा कोड वन लाइन में भी लिख सकता है, ठीक है. पूरा का पूरा कोड वो वन लाइन में भी लिख सकता है. लाइक यहाँ से मैंने स्टार्ट किया प्रिंटफ और मैं डॉट 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 करके पूरा का पूरा स्कैनफ तक, मतलब पूरा का पूरा एंड ऑफ द प्रोग्राम रिटर्न 0 तक मैं वन लाइन में लिख करके चला गया. भले ही किसी को समझ आए ना आए, बट ये आपको क्या करता है, हेल्प करता है कि पूरा का पूरा प्रोग्राम आप एक लाइन में क्या कर सको, लिख सको. सो रिटर्न 0 के साथ मैंने क्या कर दिया, एंड कर दिया. मतलब आई स्टार्टेड द मेन फंक्शन फ्रॉम हेयर एंड एंडिंग द रिटर्न 0 अप टू हेयर. तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं एक प्रोग्राम को इस तरह से कंप्लीट आउट कर सकता हूँ. Okay, भले ही this is not the correct way of writing a program, but you can do that, can begin and end on any line and any column, ठीक है. मतलब इसमें इंडेंटेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, लाइक पाइथन में आपका इंडेंटेशन फॉलो होता है, इसमें वैसा इंडेंटेशन आपको फॉलो करने को नहीं मिलेगा. ओके, नेक्स्ट इज एवरी स्टेटमेंट इज टर्मिनेटिंग विद अ सेमीकोलन. वाइट स्पेस, ब्लैंक्स, न्यू लाइन्स, टैब्स, इन सबको क्या करता है, वो इग्नोर करता है. कौन इग्नोर करता है, कंपाइलर इग्नोर दोस थिंग्स. ओके, कंपाइलर के लिए उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. नेक्स्ट इज वाइट स्पेसेस कैन नॉट बी यूज्ड विद इन लिटरल्स. अब लिटरल्स क्या चीज है, लिटरल्स का मतलब होता है नंबर्स, स्ट्रिंग्स और भी जो जो चीजें आता है. सो दीज आर व्हाट योर लिटरल्स, ठीक है. स्ट्रिंग लिटरल्स, इंटीजर लिटरल्स. लिटरल्स मीन 0 1 2 3, इसका जो ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन हुआ इसको बोलेंगे इंटीजर लिटरल्स. अगर स्ट्रिंग है ABCDEFGH एक साथ अगर लिखा हुआ और उसका कोई यूजुअल मीनिंग हुआ, सो दोज आर कॉल्ड एज स्ट्रिंग लिटरल्स. ओके, नाउ x is equals to y, here the pace are very optional, we can write x is equals to y, ठीक है. मतलब ये क्या हुआ, वाइट स्पेस मस्ट सेपरेट कीवर्ड्स फ्रॉम अदर स्ट्रिंग, ठीक है. बीच में अगर आप एक वाइट स्पेस दोगे, इंट x के बीच में आपको क्या देना पड़ेगा, एक वाइट स्पेस देना पड़ेगा. मतलब इंटीजर, ये तो आपका क्या हुआ, एक कीवर्ड हुआ ना, इंटीजर इज अ कीवर्ड, इसके बीच में आप एक स्पेस दोगे और यहाँ पे लिखोगे a. सो दिस इंटीजर इज योर व्हाट, डेटा टाइप, ठीक है. डेटा टाइप क्या होता है, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर बाद, बट दिस इज योर डेटा टाइप, दिस इज योर डेटा टाइप. और ये जो इंटीजर a है, ये क्या है, आपका आइडेंटिफायर है, ठीक है. इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक स्पेस होगा, देयर विल बी वन स्पेस. और ये स्पेस जब आप कंपाइलेशन करोगे, तो
प्रोग्राम जो कंपाइलर होगा वो इस स्पेस को क्या करने वाला है, इग्नोर करने वाला है, ठीक है, वो इस स्पेस को क्या करने वाला होगा, इग्नोर करने वाला होगा. इज दैट क्लियर? Yes. ओके. दादा हेलो हाँ बोलो. স্ট্রিংস নাম্বার হতে পারে हाँ স্ট্রিংস গ্রুপ অফ নাম্বারস होते পারে 1 2 3 4 স্ট্রিংস গ্রুপ ওদের অফ. অপারেশন হবে না ওগুলোকে যেমন স্ট্রিংস কে আমরা অ্যাড করি তো অ্যাড আপ হবে না পুরো যেরকম স্ট্রিংস কে অ্যাড করি, দেখো সি প্রোগ্রামে এটা অ্যাভেলেবল না, ঠিক আছে, মানে তুমি যেরকম পাইথন প্রোগ্রামে করতে পারো 1 2 3 করলে প্লাস করলে তুমি 4 5 6, ঠিক আছে, প্লাস করলে তুমি 4 5 6, এরকম করলে পরে পাইথন প্রোগ্রাম কি করবে, এই দুটো স্ট্রিংটাকে অ্যাড করে দেবে 1 2 3 4 5 6, ঠিক আছে, 1 2 3 4 5 6 তোমার পাইথন প্রোগ্রাম অ্যাড করে দিল, বাট সি প্রোগ্রামে এরকম করা পসিবল না. দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি কল্ড এ স্ট্রিং কনক্যাটিনেশন, ঠিক আছে. উই উইল কাম টু দ্যাট কি আমরা এটাকে কি করে করতে পারি ইন দিস সি প্রোগ্রামিং, ঠিক আছে, সেটা আলাদা কথা, বাট ডাইরেক্টলি অপারেশনস পারফর্ম হয় না, ঠিক আছে. ওকে. So these are the things. Next, case sensitivity. I already told you that area and area all are for you, these are all areas, but this have a different meaning because of the different cases, क्योंकि यहाँ पे लोअर केस है, यहाँ पे अपर केस है, अगेन यहाँ पे लोअर केस है, तो these are all different cases. Now it matters whether an identifier such as variable name upper case or lower case. तो ये सब चीज हुआ. Now test your basic knowledge. Now I am giving you one question, so you will have to solve this. So which is a valid hello world program, ठीक है. तो सबसे पहले देखो stdio.c लिखा हुआ है, is that right? फर्स्ट स्टेटमेंट. यहाँ डॉट सी होगा कि डॉट क्या होगा, what will be the answer? Dot H. Dot h. So that means this is entirely wrong. Okay, এটা ভুল হয়ে গেল. এবার এটাতে ঠিক আছে, এটাতেও ঠিক আছে, এটাতেও ঠিক আছে. This is correct, this is correct, and this is also correct. Next, int main. Okay, this is again a int main, this is int main, so this is correct. Next is what? A braces open, braces not open, braces open. এটা কি ঠিক আছে? না Because here you can be able to see that there is no opening braces. Okay, so this is again a wrong. Then we are left with these two, so this is correct. Okay, so printf hello world and hello world with this opening and this closing. Okay, this is again open close and semicolon, then return 0. Printf hello world. Okay, this. So can you be able to find where is the error? এক জায়গায় প্রিন্ট আছে এক জায়গায় প্রিন্ট টাইপ আছে One you can find that print and another one you can find that printf. So printf is the keyword, whereas print is not a keyword for your C program. Okay, তাহলে এটাও ভুলে গেল, বুঝতে পারলে তো. সো লাইক যেরকম করে আমরা এখন চেক করলাম, these are called as dry run. Okay, this is called as dry run of any programming. Line by line if you are checking any program, those are called as dry run. समझ में आया? अगर तुम फर्स्ट लाइन से लेकर के लास्ट लाइन तक चेक कर रहे हो वन बाय वन, दीज आर कॉल्ड एज ड्राई रन. और इस मेथड को क्या बोलते हैं? इंटरप्रेटिंग. ठीक है, इंटरप्रेटिंग मेथड है ये, क्योंकि आपका इंटरप्रेटर जो है वो ऐसे ही तो चेक करता है, वन बाय वन चेक करता है, लाइन बाय लाइन, याद है ना. सो now printing statement using C and comments. Okay, so we will write this thing in your C programming. तो यहाँ से आपका प्रोग्रामिंग स्टार्ट है. तो एक काम करते हैं, अगर आप सबके पास डेव सी प्लस प्लस है तो प्लीज उसको खोल लीजिए. है क्या? लैपटॉप में बैठा है कोई? लैपटॉप सामने है ओके, yeah सो ओपन दिस नाउ. सी दिस इज द टर्मिनल स्पेस. ये आपका एडिटर का बैकग्राउंड है, एनवायरनमेंट स्पेस है. यू विल प्रेस कंट्रोल एन टू गेट अ न्यू विंडो. ओके, you will press control and n togetherly. Control and एक साथ दबाओगे तो ऐसा स्पेस खुलेगा. Next, inside that the very first thing which you have to write is hash include stdio.h. okay, stdio.h. This is what? This is the header file. This is the header file, header header file. Okay, ये header file हुआ. Next thing, the very important thing is the int main. Okay, why don't we write void main? Because this is what type of compiler? 32-bit compiler या 64-bit compiler है ये, ठीक है. And because of that we write int main. हम लोग void main नहीं लिखेंगे. void main turbo C++ में काम करेगा, यहाँ पे काम नहीं करेगा. Okay, so next thing which you have to write is print with f. Print f. Okay, print means print
and f means what? Function. So print function, calling that print function with a inside that print function what you have to do is you have to give some argument. ठीक है, ये function है, ये function के अंदर कुछ भी अगर लिखते हो so those are called as arguments. ठीक है, तो इस argument को पास करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से इस ओपनिंग कोट्स ओपन करना पड़ेगा. ठीक है, एंड से आर्ग्यूमेंट्स इंस्टेड ऑफ राइटिंग हेलो वर्ल्ड, समझो ये आर्ग्यूमेंट्स है. ठीक है, so we are not like hello world लिखने वाले programmers, we are writing this argument. So understand, this is a function, this is a opening of the function. Okay, and inside that you are passing some arguments. Currently the arguments is a string literal. समझ में आ रहा है? आर्ग्यूमेंट का क्या नाम है? स्ट्रिंग लिटरल है. तो जो आपके टीचर्स या फिर अलग अलग यूट्यूबर्स इसके अंदर हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट करते, दोज आर एक्चुअली राइटिंग वर्ड द आर्ग्यूमेंट. ओके, द आर्ग्यूमेंट इज अ स्ट्रिंग लिटरल. सो यहाँ पर भी आर्ग्यूमेंट क्या है? एक स्ट्रिंग लिटरल है जिसका नाम क्या है? आर्ग्यूमेंट्स. ओके, सो एंड एंड विद अ सेमीकलन. तो सेमीकलन से क्या हुआ? ये पूरा का पूरा लाइन टर्मिनेट हुआ. ओके, नाउ यू कम टू द सेकेंड लाइन and in that second line you have to write scanf. okay, so अब एक काम करते हैं, printf ही सीखते हैं अभी फिलहाल के लिए फर्स्ट प्रोग्राम में. तो अगेन विद अ न्यू printf you will write word hello world. ओके, अब इस बार hello world लिखिए, तो क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि क्या है hello world. इसमें आपको समझ में आया तो क्या हुआ, एक आपका फंक्शन है, वो फंक्शन कुछ आर्ग्यूमेंट लेता है. ओके, सो फंक्शन इज टेकिंग सम आर्ग्यूमेंट, और उस आर्ग्यूमेंट में फिलहाल हम क्या आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं? हेलो वर्ल्ड आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं. फंक्शन का नाम क्या है? printf फंक्शन है. ये फंक्शन कहाँ मिलेगा? stdio.h हेडर फाइल के अंदर मिलेगा. इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? ओके, सो टू एग्जीक्यूट दिस, कम एंड कंपाइल एंड रन. जब आप कंपाइल एंड रन करोगे यू नीड टू सेव दिस फाइल. सो द फाइल टाइप विल बी c. ओके, डॉट सी में सेव होगा. नाम क्या होगा? इनपुट फाइल. इनपुट फाइल. ओके, सो एक काम करते इसको आउटपुट कर देते हैं क्योंकि वी आर डूइंग आउटपुट ना. सो दिस इज आउटपुट फाइल डॉट सी. इसको हमने किया सेव. ओके, so you can see. Okay, now here you can notice that I have written a printf in two different statement, but argument s and hello world, this complete thing is printed in a single statement without giving any space. ठीक है, तो एक्चुअली में ऐसा ही होता है कि आपको एक्सटर्नल स्पेस प्रोवाइड करना पड़ता है, एंड फॉर दैट यू रेड सम एस्केप कैरेक्टर्स. तो फॉर फर्स्ट एस्केप कैरेक्टर इज स्लैश टी. ओके, स्लैश टी का मतलब है टैब. टैब में कितना स्पेस आता है? टोटल 4 स्पेस आता है. ओके, तो अब देखते हैं टोटल 4 स्पेस आया है. सो 1 2 3 4. ओके, तो विद द 4 स्पेस वी कम ओवर हेलो वर्ल्ड. तो इसके बीच में कितना स्पेस आया? 4 स्पेस आया विद गिविंग अ स्लैश टी. ओके, स्लैश टी का मतलब हुआ एस्केप कैरेक्टर. नाउ इफ यू गिव स्लैश एन मीन्स चेंज द लाइन, और यू कैन से दैट नेक्स्ट लाइन. तो you can see that arguments with the next line. Okay, so arguments and we are getting a next new line. Is that clear? First program समझ में आया सबको? Hello. Okay, so this is the thing about the first program. So you can see that there यहाँ पे जो हमने यहाँ लिखा हुआ है ये क्या है? एक कमेंट है. Now ये कमेंट भी हम यहाँ पे सीख लेते हैं कि अगर आपको कमेंट लिखना है किसी प्रोग्राम के अंदर तो आप कमेंट कैसे लिखते हो. अगर आप इस तरह से यूज करते हो, मतलब व्हाट यू आर डूइंग, you are using this thing, this forward slashes 2 times. So this is what a single line comment. This is called a single line. Okay, so this is called a single line comment. If you want to give a multi-line comment, you have to give / then asterisk, then say this is a multi-line comment. Okay, now for a multi-line we are using a multi-line, so multi-line comment. Okay, so after ending that again you have to put a asterisk and then a slash. So you can see that all those blue statements are actually your comments. Okay, and those statements which are having a highlighted green yellow things, those are what? Those are your functions, or you can say that the things which are related with C world. Okay, so before that let me give you some examples of these things. Now यहाँ पर जो ये सब चीज लिखा हुआ है
ये है आपका लाइन नंबर, ठीक है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ईच लाइन इज इंडिकेटिंग अ वन लाइन, ठीक है, ये जो नंबर्स है दीज आर रिप्रेजेंटिंग वन लाइन. नाउ इफ यू गिव एनी एरर टू योर प्रोग्राम, जैसे कि आपने यहाँ पे प्रिंट लिखा, नाउ यू कैन सी दैट यू आर प्रोड्यूसिंग एन एरर. तो एरर जब आप प्रोड्यूस कर रहे हो, सो फॉर दैट यू आर सेइंग दैट अनडिफाइंड रेफरेंस टू प्रिंट. तो प्रिंट फंक्शन में क्या हुआ है, अनडिफाइंड रेफरेंस हुआ है. सो दिस इज हाउ यू विल रीड अ एरर. ओके, कहाँ पे एरर आया है आपका, प्रिंट फंक्शन में एरर आया. सो एज इट इज आप जाकर के इसको ठीक कर सकते हो. नाउ सी, इफ अगर मैं यहाँ पर ये समीकरण देना भूल जाता हूँ, ओके, सो व्हाट विल हैपन, इट इज सेइंग दैट go to line number 8, see line number 8, go to line number 8, column number 2, this is column number 1, this is column number 2. Now error is expected before printf. इस printf स्टेटमेंट के लिखने से पहले आपके पास एक एरर ऑकर्ड हुआ है. व्हाट इज दैट एरर, द एरर इज दैट यू हैव मिस्ड वन टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट, दैट इज सेमीकोलन. ठीक है, सेमीकोलन लिखना आप भूल गए हैं. सो दिस इज हाउ यू विल रीड दिस लाइन्स. ओके, सो दिस लाइन्स आर हैविंग इट्स मीनिंग. सो आई गेस यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज द मीनिंग, है कि नहीं, समझ में आया तो इस लाइन का क्या हाँ, मीनिंग है. समझ में आया. वेरी गुड. नाउ सी, Yes. सी दिस इज अ येलो कलर स्टेटमेंट. यहाँ पे जो कलर यूज किया गया है ये क्या है, येलो कलर है. सो दिस येलो कलर्स आर सेइंग दैट दीज आर व्हाट कीवर्ड्स. ठीक है, येलो कलर बताता है वो कीवर्ड्स है. लाइक इंटीजर एक कीवर्ड है, सो फॉर दैट यू आर यूजिंग येलो कलर. ठीक है, दिस इज मेन फंक्शन. मेन इज अ फंक्शन एंड दैट्स व्हाई इट इज इन ग्रीन कलर. ओके, printf इज अ फंक्शन एंड दैट्स व्हाई इट इज इन ग्रीन कलर. ठीक है, ये भी एक फंक्शन है, इसलिए किस कलर में है, ग्रीन कलर में है. समझ में आया, is that clear? Yes. Okay. Yes. Very nice. Now come to the input from user. The first program which we have did is about the printing something and getting some comments. Okay, now in this program we will take something from user. Okay, now see, before taking something from user, let me explain you that what are those things that you will take from user. Now like today you are having 1 rupee coin. Okay, तुम्हारे पास कितना रुपी कॉइन है, 1 rupee coin है. Okay, or you can say that 100 rupees, whatever. So where you can place that 100 rupees, in a space, not at all. कहाँ पे रख सकते हो इसको, you can put it in your hand. ठीक है, आप अपने हैंड में या फिर पाम में क्या कर सकते हो, 100 rupees रख सकते हो. ठीक है, सो योर पाम इज एक्टिंग एज अ कंटेनर. ठीक है, आपका पाम क्या कर रहा है, एक कंटेनर की तरह काम कर रहा है. एक पाम आपका क्या कर रहा है, कंटेनर के जैसा काम कर रहा है. द वेरी गुड एग्जाम्पल इज योर, लाइक दिस इज अ मिल्क. ओके, this is a milk and this is what your bowl. Okay, this is what your bowl. Now you want to pour this milk and keep this milk out from this packet. Okay, ये पैकेट है मिल्क का, इस पैकेट के अंदर से आप मिल्क को बाहर निकालना चाहते हो, बट यू वांट टू पुट इट ओवर समवेयर, सो यू नीड द हेल्प ऑफ दिस बाउल. ठीक है, सो दिस बाउल विल एक्ट एज व्हाट, दिस बाउल विल एक्ट एज द कंटेनर. Similarly, you have some values like 25, 100, 1000. Okay, these are what your values. Now you want to keep these values somewhere, so for that you need what, you need an identifier. Before calling it identifier, call it container. Okay, identifier बोलने से पहले इसको container बोलो, जो क्या करेगा, इनको contain करेगा. So you need a container. So this container will help you to contain the number 25. So A is the container which help you to contain the number 25. ठीक है, A के अंदर आपने क्या किया, 25 रखा. Now from the very next time, this 25 will be identified by the number A. ठीक है, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, आइडेंटिफायर है. Now everything has a logic behind the naming. ठीक है, और जब आपको डेफिनेशन लिखने देता है क्लास में या फिर एग्जाम में, तो मतलब याद नहीं रहता है डेफिनेशन, तो यही है एक्चुअली डेफिनेशन याद रखने का तरीका. पहले 25 एक वैल्यू था, उसको मुझे कहीं कंटेन करना था, दैट्स व्हाई द नेम इज ए एंड ए इज कंटेनिंग द वैल्यू 25. लेटर ऑन इन योर प्रोग्राम व्हेन यू वांट टू आइडेंटिफाई द नंबर 25, this a will help you to identify the number 25 and that's why this a is called as identifier. Okay, इस a का नाम इसीलिए identifier पड़ा. Now एक और नाम क्या है, a could be anything. Okay, but you don't know the real name of the a. Okay, a could be anything but you don't know the real name of a and that's why a is also called as variable. आज एक ने 25 पकड़ा है, आज a is containing 25. On some other day it may contain the value 100.
इस किसी और दिन ये क्या कर सकता है 100 कंटेन कर सकता है एंड बिकॉज ऑफ दैट कंटेनिंग डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट टाइम इस ए का नाम क्या है वेरिएबल है समझ में आया समझ में आया Yes. so I hope this is the very nice definition of giving you the meaning of the real things okay ये identifier और ये variable और ये name किस तरह से आया so this is the thing so now we will write this thing in the program so again control n giving a new name again what you have to do hash include stdio dot h this is the very first thing which you need to do then give int then give main okay int main inside that int main you have to open these braces and you have to write printf is used to write something in your console screen so what is console screen I didn't tell you about the right last program so while compiling this thing a window pop out okay this window is called your console screen is that clear ये विंडो आपका कंसोल स्क्रीन है समझ में आया okay so this window is your console screen and now you want to write something in the console screen what please enter two values please enter two values okay please enter two values now for entering two values you need two values isn't it आप values देने के लिए आपको दो value लगेगा ना you need two values so for that two values what you will call a scanf scan means scanning something okay क्या scan कर रहा है कुछ values को scan कर रहा है समझ में आ रहा है so कुछ values को scan कर रहा है and those values are scanned by this function now before writing this scanf let me explain you something called data types okay so first thing is that what is data type okay let me explain you something called data types now data types what is data type data types are of three or four categories okay so let me explain you the very basic data types that is the primitive data type primitive का क्या मतलब होता है primitive का मतलब होता है basic okay primitive data type so primitive data type means what the basic data type the basic data type okay so what are those basic data types those basic data types are integers representing with int then characters representing with char okay next is integer character then double or you can say that float okay पहले float पढ़ लेते हैं then after we will come to double f l o FLOAT ठीक है ऑल आर ऑफ व्हाट टाइप मतलब ये सारे आपको लोअर केसेस में देखने को मिलेंगे ओके सो दे आर ऑल ऑफ लोअर केसेस इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट देन डबल ओके नेक्स्ट इज डबल we will use double long later on of our program but while we are writing something in scanf इसके लिए मैं दो चीज बता दे रहा हूँ आपको the thing which we'll right now use is integer because we want to take some values okay and values are basically of integer types ठीक है values किस टाइप के मतलब आपके अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए integer टाइप के integer टाइप का हम दो values लेंगे now integer is representing by %d इसको हम बोलते हैं format specifier ठीक है ये format बताता है so %d will represent the format for whom for the integers d means decimal you can also understand it likewise d means decimal percent means it is the type of that variable okay variable का type क्या होगा percent d होगा समझ में आ रहा है percent d means decimal ये कैसा वैल्यू लेगा डेसिमल वैल्यू लेगा okay so this is decimal and percent d for integer you will see percent c for character while we will understanding the values of character तो आपको परसेंट सी देखने को मिलेगा जब आप ये फ्लोट पढ़ेंगे तब आपको परसेंट एफ देखने को मिलेगा ओके सो लाइकवाइज जब हम डबल पढ़ेंगे तो हम देख लेंगे क्या क्या है नहीं है फॉर राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग वी आर टेकिंग टू इंटीजर वैल्यूज एंड दैट्स व्हाई वी विल यूज परसेंट डी ओके तो दो ले रहे तो स्पेस दे करके दो लेंगे 2% डी ओके देन गिव कॉमा सो कॉमा देने के बाद आप क्या दोगे a comma b so now a and b are what a and b are your two variables ठीक है जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो मतलब वेरी फर्स्ट टाइम मतलब कहीं पर भी किसी बुक में तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी इंटीजर a देखने को मिल जाएगा a कॉमा b नेवर रीड अ प्रोग्राम फ्रॉम दिस नंबर फोर्थ लाइन ठीक है ये नंबर फोर्थ लाइन से कभी भी प्रोग्राम लिखना मत स्टार्ट करना फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि प्रिंटफ स्टेटमेंट सबसे पहला क्या है
So first printf statement is asking for two values, that is please enter two values. Then after that you are saying that you need two values, those two values are you are going to contain in the variables called a comma b. ठीक है, दो वेरिएबल्स के अंदर आप रखोगे वेरिएबल a and वेरिएबल b. So for that variable you need the data type of that variable. So those data types are accordingly एंटर्ड इन लाइन नंबर 4. ठीक है, लाइन नंबर 4 में हमको उस डेटा टाइप को लिखना है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है स्टार्टिंग में, फॉर्मेटिंग पढ़ा है, स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ हेडर फाइल, देन द मेन फंक्शन, देन द वेरिएबल डिक्लेरेशंस. तो वेरिएबल डिक्लेरेशंस आपको यही करना है. प्रोग्राम रीडिंग करते टाइम कभी भी यहाँ से रीड मत करना, वरना आप सिर्फ मगअप करते रह जाओगे प्रोग्राम को. ठीक है, तो स्टार्ट विद द प्रिंटफ एंड सी कि क्या पूछ रहा है. दैट इज आस्किंग टू वैल्यूज. टू वैल्यूज के लिए हम दो वैल्यूज लिए, किसमें स्टोर करेंगे, ए और बी में स्टोर करेंगे. व्हाट इज ए एंड बी? ए एंड बी आर वेरिएबल्स. तो फॉर दोज वेरिएबल्स यू हैव स्पेसिफाइड द टाइप, दिस आर योर %d एंड you have understood that ये कौन सा टाइप होगा, इंटीजर टाइप होगा. So right after that you are writing integer over here with the variable a comma b. I hope this is clear for everyone. ठीक है, समझ में आया ना? Yes. Okay, so then after you will say printf the entered values, the entered values are, the entered values are, the entered values are colon %d and %d. Okay, comma. Now see, there is a very interesting thing behind that, कि इसमें इंटरेस्टिंग थिंग क्या है. इंटरेस्टिंग थिंग है कि यहाँ पे आपको एंड ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, एंड, और यहाँ पर भी आपको लेना पड़ेगा एंड. व्हाई डू वी नीड दिस एंड? ओके, नाउ अगेन कम ओवर हियर एंड अंडरस्टैंड इस एंड का क्या मतलब है. ये वेरिएबल ए था, इस वेरिएबल ए का फिलहाल के लिए आपको लोकेशन पता है. ठीक है, मतलब इसको वेरिएबल को भूल जाओ. आपने मानो कि आपके पास मिल्क था. ठीक है, दिस इज योर मिल्क एंड दिस इज योर बाउल. ओके, दिस इज द मिल्क, दिस इज द बाउल. मिल्क जो है इस बाउल के अंदर आ गया है, मिल्क हैज एंटर्ड इन दिस बाउल. नाउ ये जो बाउल है ये किस लोकेशन पर है, ये आपका मैटर करता है. ये बाउल यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर हो ही सकता है, बट फॉर यू इट इज अ डाइनिंग टेबल. ठीक है, किसी के लिए ये डाइनिंग टेबल है, बट फॉर एनीवन एल्स ये क्या है, ये आपका अर्थ सरफेस का कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन होगा. इजंट इट? अगर आप गूगल मैप देखोगे तो वो तो 24 डिग्री नॉर्थ एंड समथिंग साउथ बता देगा, है कि नहीं? बताएगा ना इस तरह से. ये गूगल मैप तो नहीं बताएगा कि वो डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ है, इस तरह से बोलेगा? टेल मी No. now. So Google map will tell you the exact location. So for that exact location, again this milk is changed to the value that is 24. Okay, the value 24. This container is changing with the value number a. Now this 24 will going inside this variable a, but this variable will having some exact location, and those locations are of what type? 4 bit type होंगे, मतलब टोटल 16 बिट टाइप का लोकेशन होगा. ठीक है, याद है ना टोटल हमारे पास कितना लोकेशंस था? 65536 लोकेशंस थे. 65536 लोकेशंस थे. उन 65536 लोकेशंस में से ये कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन होगा. लेट्स से मेरा वो लोकेशन 2046 है. ठीक है, तो ये वो लोकेशन 2046 हमको देना है. तो ये लोकेशन देने के लिए वी विल गिव द %a एंड %b. ओके, सो ये दो वो लोकेशंस है. नेक्स्ट द एंटर्ड वैल्यूज आर दिस. सो a एंड b विल कम फ्रॉम दैट वैल्यू. तब आपको लोकेशन का जरूरत नहीं होता है, तब आपको क्या चीज का जरूरत है? ओनली द वैल्यू. सो फॉर अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू, मतलब फॉर टेकिंग द वैल्यू आउट फ्रॉम देयर, यू डोंट नीड द लोकेशन. आप डायरेक्टली वैल्यू आउट कर सकते हैं ना, वैल्यू बाहर निकाल सकते हैं. एंड दैट्स व्हाई वी डोंट पुट एंड व्हेन वी राइट समथिंग इन printf फंक्शन. printf फंक्शन में जब हम लिखते हैं तब हम एंड यूज नहीं करते अगर हमको वैल्यूज से मतलब है. ठीक है, तो ये वैल्यूज के लिए ये हुआ. और एक printf स्टेटमेंट जस्ट इसके नीचे लिखना है ताकि आपको मैं एड्रेस भी दिखा सकूं. तो फॉर एड्रेस यू विल गिव एंड and and. Okay, so this and is representing what? The location, the exact location of the variable a. Okay, so the entered you can, instead of saying that entered, you can say that the locations are, the locations are and now ये सब कुछ क्या हो जाएगा, एक लाइन में प्रिंट हो जाएगा. So to make it
लुक गुड, हम क्या करेंगे, स्लैश एन देंगे तो नेक्स्ट लाइन पे आएगा, अगेन वी विल गिव अ स्लैश एन तो ये नेक्स्ट लाइन पे आएगा, और ये तो लास्ट लाइन है तो हमको इसमें स्लैश एन नहीं देने से भी चलेगा. सो वी विल सेव दिस प्रोग्राम, compile and run. We will save this program as input file. Input file, ठीक है, input file से नाम से सेव करेंगे, यहाँ पे C source में रखेंगे इसको, और इसको हम क्या करने वाले, प्लीज एंटर टू वैल्यूज. सो फर्स्ट वैल्यू इज 25, सेकेंड वैल्यू इज 15. So you can see that the entered locations are 25, 15. Now you can see that 6478580. This is one address. Again this is one address. ठीक है, ये दोनों क्या है, addresses है, address 1 and address 2. समझ में आया सबको? हेलो, हाँ বুঝতে পেরেছো তো? লোকেশন টাইপ বলো. হ্যাঁ, এই দেখো এই দুটো কি হলো, ওটার লোকেশন বেরোলো, কার বেরোলো, ভেরিয়েবল এ অ্যান্ড ভেরিয়েবল বি. মানে এখানে এখন আমি চেঞ্জও করতে পারি ভ্যালুটা. সো ভ্যালুজ আর 15 and 96, ঠিক है, values are your 15 and 96, but the locations are different locations. One is 80, another one is 76. Is that clear? এন্ড বি ডিপ্লে লোকেশন দেখাবো. হ্যাঁ, and a means a এর লোকেশনটা, and b means b এর লোকেশনটা, এই লাস্টটাতে, লাস্ট স্টেটমেন্টটাতে আমরা দুটো লোকেশন প্রিন্ট করছি, ঠিক আছে? ओके, सो दिस इज द थिंग. ये हो गया आपका इनपुट फ्रॉम यूजर्स. सो नाउ एज वी हैव जम्प टू द प्रोग्रामिंग, तो हम दो तीन प्रोग्राम करेंगे, और दो प्रोग्राम करते. सो फर्स्ट इज द समेशन, ठीक है, समेशन ऑफ टू नंबर्स. अगर दो नंबर्स का समेशन करना है, सो अगेन व्हाट यू हैव टू डू इज हैश इंक्लूड, क्या करना है, stdio.h, stdio.h. okay, so next is int main, then next is what, opening braces. then you want to ask user for what, क्या आप डायरेक्टली वेरिएबल डिक्लेयर कर दोगे? नहीं, नेवर डिक्लेयर अ वेरिएबल एट द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है. क्या करना है आपको, printf में आकर के बोलना है एंटर टू वैल्यूज. ओके, एंटर टू वैल्यूज a and b, ठीक है, a and b, ठीक है, a and b दो वैल्यूज एंटर करना है, स्लैश एन देंगे तो नेक्स्ट लाइन पे पहुंचेंगे. देन वी यूज स्कैनर. सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट हमको दो वैल्यूज लेना है, एंड द टाइप्स आर ऑफ व्हाट, इंटीजर टाइप, क्योंकि मैं इंटीजर समेशन करना चाहता हूँ. सो दो नंबर्स के ले लिया इंटीजर. नाउ after that what you have to do is you have to give one comma, and you are taking those value inside a variable, that is variable number a and a variable number b, ठीक है, दो वैल्यूज वेरिएबल नंबर a और वेरिएबल नंबर b में लिया. now you want to perform what, summation. so you need sum, so for that a plus b, ठीक है, बट a plus b का जो भी वैल्यू होगा उसको कहीं पर तो स्टोर करना होगा. so for that you need again a different variable c, so c वैल्यू के अंदर स्टोर होगा. now this is the very interesting thing कि यहाँ पर ये चीज क्या है, ये चीज जो यहाँ पे हुआ है, इसमें देखना, जब हम c इज इक्वल्स टू a प्लस बी करते हैं, c इज इक्वल्स टू a प्लस बी, c इज इक्वल्स टू a प्लस बी, तो a प्लस बी का जो भी रिजल्ट होगा वो c में जाने वाला है, ठीक है, ना कि c का रिजल्ट a प्लस बी में आने वाला है, ठीक है. नेवर डू दैट लाइक दैट, क्योंकि हमारा मैथ्स पढ़ने का टेक्नोलॉजी होता है ना, वाइल वी अंडरस्टैंडिंग मैथ्स, मैथ्स में क्या होता है, x इज इक्वल्स टू वाई कर देते हैं, x इज इक्वल्स टू वाई कर देते हैं. सो x इज इक्वल्स टू वाई में क्या हो जाता है, x इज इक्वल्स टू वाई में हो जाता है कि x का वैल्यू y के पास चला गया, है ना, लाइक अ लीनियर ग्राफ अगर आप ड्रॉ करते हो इस तरह से. सो व्हाट यू आर सेइंग, y इज इक्वल्स टू x, मतलब y का जो वैल्यू है वो x के वैल्यू के इक्वल आ गया, ठीक है, ऐसा ही तो बोलते हो आप. isn't that, हेलो. यस यस यस. सो y इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, हमारा यहाँ पे क्या होगा, x का वैल्यू y पे जाएगा. ओके, इंस्टेड ऑफ सेइंग y का वैल्यू x पे आ रहा है, वी विल सेइंग x का वैल्यू विल गोइंग टू y. सो दिस इज द वैल्यू which will going inside this value. okay, so this is the very important step कि a plus b का वैल्यू c में जा रहा है, क्योंकि ये समझने में तब डिफिकल्ट होता है जब हम स्वैपिंग प्रोग्राम पढ़ते हैं. सो मेनी ऑफ अस मे बी डिफरेंट अंडरस्टैंड कि उसमें हुआ क्या होता है. सो दिस इज द थिंग. नाउ as you can see that we have declared something, that is a b. so after that we have understood that we have taken two variables, one is a, one is b. now it is our time to declare those variables. so we have already known that the variables are of what type, integer type. so these are a comma b comma c. समझ में आया?
तो नेवर रीड सम प्रोग्राम विद द वेरी इनिशियल स्टेप a, b, c, अदरवाइज आप हमेशा a, b, c ही लेंगे, ठीक है। तो ये a, b, c के जगह पे कुछ भी हो सकता है, ऐड मतलब इसको हटाओ और यहाँ पे लिखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोलो कि वैल्यू 1, ठीक है, तो वैल्यू 1, वैल 1, यहाँ पे हो जाएगा ये वैल्यू 2, तो वैल 2, इसका ये यहाँ पे हो सकता है, सो दिस इज व्हाट रिजल्ट, res, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा वैल 1, यहाँ पे आ जाएगा वैल 2। नाउ यू हैव चेंज द वेरिएबल नेम्स, तो यहाँ पर भी वेरिएबल्स का नेम चेंज हो जाएगा। अदरवाइज जब भी आप देखोगे किसी भी लोगों को करते हुए, तो डायरेक्टली कहाँ से स्टार्ट करते हैं, इंटीजर डिक्लेरेशन से स्टार्ट कर देते हैं। इंटीजर डिक्लेरेशन से स्टार्ट करने से लॉस इस बात का होता है कि हम प्रोग्राम को मगअप करने लगते हैं इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्राम, ठीक है। नाउ आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट, what we have to do is next we have to print this result, so what we will say, the result is result, the result is %d, small d, okay, comma res, okay। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। नाउ वी विल सेव दैट, प्रोग्राम का नेम हो जाएगा सम, एंड दिस विल बी आवर सोर्स फाइल, इसको सेव किया। नेक्स्ट इज वी विल एग्जीक्यूट दैट। सो नाउ सी, कुछ एरर किया हूं मैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सो सी line number 4, come to line number 4 and see what we the error we have performed. The very first thing is that instead of giving comma we have put a dot, okay। तो इन्होंने क्या बताया, go to line number 4 and check there is an error, instead of giving a semicolon or instead of giving a semicolon, not a semicolon, the colon, we have put a full stop, ठीक है, before full stop। तो full stop को remove करना है और क्या करना है, semicolon देना है, okay। So now again we will compile that, we will check, so कॉमा ना, हाँ comma, so we will give a comma or colon, what you can say, comma, okay। तो मतलब लास्ट टाइम मैंने डॉट दिया था, मतलब फुल स्टॉप दिया था, बट फुल स्टॉप इज द रॉन्ग ऑप्शन, तो इट वाज गिविंग द एरर, ओके। सो सी एंटर टू वैल्यूज, फर्स्ट इज a एंड नेक्स्ट वन इज b, ओके। दो वैल्यूज आया a एंड b, फर्स्ट इज 15, सेकंड इज 54, नाउ द रिजल्ट इज 69। आई होप दिस इज अंडरस्टूडेबल, है ना, समझ में आया सबको क्या हुआ। Next time when you read this program, never start reading from int val equals to 1, this is the complete program, ठीक है। but start कहाँ से करना है, understand this first statement, then this first statement, then this statement, then declaration, ठीक है, then the printf statement, this is the flow। first कौन सा होगा, ये first होगा, second कौन सा होगा, ये second होगा, then this is the third, ये होगा आपका fourth number step, sorry this is the fourth number step, and this is the final step, ठीक है, ये वाला होगा आपका फाइनल स्टेप, समझे। माइनस के टाइम पे भी यही चीज होगा, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। सो प्लस इज व्हाट, द ऑपरेटर, माइनस इज अगेन ऑपरेटर, लाइक दैट यू हैव डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये हुआ आपका ये प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट। वेरिएबल्स के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया। तो व्हाट आर वेरिएबल्स, आई नीड अ मेमोरी लोकेशन वेयर आई कैन यूज टू स्टोर वैल्यू एंड चेंज इट ड्यूरिंग रन टाइम, ठीक है। जैसे कि इंट बी, द लाइन सेज दैट I want to create a space called b that is able to hold one integer value, okay। the variable has a name, so that variable is actually called as what, identifier, उसको हम identifier भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं हमने बता दिया आपको। तो a variable name is what, a reference it, to reference it whenever I need it, okay। किसी भी वेरिएबल को अगर आपको चाहिए तो उसके वेरिएबल का क्या क्या देना होगा, आपको नेम देना होगा, ओके। डिफाइनिंग वेरिएबल नेम एंड डेटा टाइप कॉल्ड एज वेरिएबल डेफिनेशन, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल डेफिनेशन। नेक्स्ट इज वेरिएबल डेफिनेशन किस तरह से हो सकता है, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, इन में से किसी भी तरह से हो सकता है। द फर्स्ट थिंग विच यू विल राइट इज द इंटीजर, मतलब यहाँ पे होगा डेटा टाइप। नेक्स्ट इज द वेरिएबल नेम, जैसे कि अभी भी हमने किया इंटीजर ए, तो इंटीजर इज योर वेरिएबल एंड ए इज योर वेरिएबल नेम, ओके। सो नेक्स्ट थिंग इज दैट यू हैव डेटा टाइप्स, तो यू हैव डिफरेंट formats of data types। हमारा अभी चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, so in this chapter we will understand what is int, what is float, what is double, what is character, okay। in the next chapter, मतलब next module, when we start the next module, we will see the chapter called array structure, union pointer, these are non primitive data types, okay। then you will come the user defined data types like enum, the type def, this is also a user defined data type, okay। structure भी आपका user defined data type है। next last data type जो है वो है void, ठीक है। अगर कोई भी इसका टाइप नहीं होता है तो उसका टाइप हो जाता है void,
So data type defines the operations that could be applied on variable, size of the variable, and interpretations. So in the next class we will understand that what is integer, okay, what is the size of the integer, how integer variable stores, what space it allocates, everything related to that. Okay, तो हमारा टॉपिक यहाँ से उस दिन स्टार्ट होगा. तो समझ में आया सबको? तो पेज नंबर 19 से हम स्टार्ट करेंगे और जो भी आपका डाउट्स है वो मेरे को बताओ अगर कुछ डाउट है अभी तक के प्रोग्रामिंग में. समझ में आया कि कुछ डाउट है बताओ. हेलो. हेलो কিছু ডাউট থাকলে বলো. डाउट नहीं सो वन जीरो 110. Okay, so this is in decimal format, sorry, binary format. Okay, এটা কি ফরম্যাটে আছে? Binary format আছে. So this is in binary format. Now you have to change this in which format? In decimal format. For that 0, 2 to the power 0 into 1. Okay, so no need to write this. What, instead of doing that, take it as 1. Okay, 1, 2, then 4, then 8, then 16. Okay, so likewise 16 plus 4 plus 2, so this is the answer. 16 plus 6 is 22. So yes, it is correct. 16 plus 6 is 22. Now this system is your decimal system, so this is 10. Okay, now the next thing which I have told you about to do this, convert it into hexadecimal. Hexadecimal means group of 4. Okay, so this is group of 4. Now you are having nothing over here, so we will add extra 3 zeros over here. Okay, so extra 3 zeros, so what you will get is 1, and this number is what? 6. Okay, 1 6. So this is 16. Now 16 what? H. This is 16h. Okay, next thing what you have to do is you have to convert it in this number in which format? In octal format. So octal format means group of 3. So this is 3 and this is 3. Okay, so this number is giving 1, sorry 2. Okay, this number is giving 2 and this number is giving you 6. Okay, 6. So this is 26 and 8. Okay, तो ये हो गया. समझ में आया सबको? हाँ, next question is 29. Okay, 29 in which system? In decimal system. Now convert this in binary, hexadecimal and octal. 16 plus Let me check. Okay, so तुम्हें just करके मिलाओ 29. Okay, so what I have told you in the last class is you just remove this 1 over here. ठीक है? So 2, that is 28, that means 14. So carry is what? 1. Okay, remainder is 1. Next 14, so 2 you will get 7. Okay, so remainder is 0, you are getting no remainder. Next again 2. Okay, so what you will get right now is 3. 2 3s are 6 and remainder is 1. Okay, next again 2. When you divide it with 2, you are getting it 1. So this is 2 ones are 2 and remainder is what? Sorry, 2. So yes, 1, or remainder is again 1. So this is the last step. So now go back. 1 1 1 0 1. So এটাই এসেছিল নাকি 1 1 1 0 1? टेस्ट रहते হ্যাঁ, now group of 3, এখানে কি আছে? 0 আছে. So this is what? 3. This is 3 and this is what? 5. So 5. So it is 35 8. 35 in octal format. Next thing is that 1 1 1 0 1. Okay, so this number is what? 8 plus 4 12 or 113. Now 13 in hexadecimal is ABC. A is your 10, A is your 10, A is 10, B is 11, B is 11, C is
12, C is 12, and D is 13. Okay, so D is 13. So the number is 1D. Number is 1DH. Okay, number is এটা 1DH. hexagonal হবে না? Hexadecimal number is 1DH. Total you are getting 8 plus 4 is 12 and 1 13. So 13 is 1DH. Is that clear? আমরা চারটে চারটে ভাগ করে পারতাম না, 001 আগে বসিয়ে 1101 করে। হ্যাঁ, likewise না 001 এখানে তো আছেই ওটা 0001. So number আর is 1 means আর এখান থেকে এখানে 0, আচ্ছা স্টার্টিং এ 1 আসছে মানে। হ্যাঁ এখানে টোটাল চারটে আছে. So these are what is these are 13 and 13 is representing by D. So this is 13D. Okay. আর একটা কোয়েশ্চেন করে দিচ্ছি 1 1 1 0 1 1 1 1 second 1 1 0 1 1 0 1. Okay, convert this number into hexadecimal. So very first step what we have to do is 4 মানে চারটে 4 হ্যাঁ 4 ডিভাইড করব, 4 4 ডিভাইড করব, কারেক্ট 4 4 ডিভাইড করলাম, আগে একটা 0 বসবে। হ্যাঁ কারেক্ট আগে একটা 0 বসবে. Now 8 plus 4 is 12 and 1 13. So this is 13. So 13 means D. বি Okay, next this is what 6. Okay, so 4 as it plus is 2 6, 6 will copy over here. Next this is what 7, isn't it? This 4 is plus 7. 4 plus 1 6. Okay, so this is 7. So the answer is 760. 760. Okay, is that clear? So I hope this is very easy and you can solve it with your own, right now. So I'm stopping the record.